Just a minute. Yeah. Good evening, everyone. Thank you for joining in this GATB crash course. Is my voice audible? First of all, I would want to confirm this. Just use the this thumbs up sign. Is my voice audible, all of you? Thank you so much for your response. So I welcome you all to the GATB crash course. Uh, this is the first class of this particular crash course. I would start with a little bit of introduction and orientation, and then we would be moving on to the details of the course. This is a crash course, so I would not be wasting much time. I would want all of you to be on time. Primarily, this is the first thing that I would expect all of you to do. So I'm just sharing up my screen. Please confirm when it is visible. Is my screen visible, guys? Can you please confirm? Yeah. So first thing is that while I am talking in the class, I would expect all of you to keep your mics at mute and use the emoticons thumbs up and thumbs down in case you are not able to follow anything, right? Apart from that, you are free to use the comment section and you can ask your questions. I would be happy to answer any of those. Now, I would be talking about GATB examination and the previous year cutoffs also I would be giving you, because we need to be really objective about this, that how we can perform well in the upcoming time duration, whatever we have. Many students, many students amongst you have already given the GATE examinations. Some of you have done extremely well in the GATE examinations. Some of you were not able to do that well. Particularly for those people who could not do well in the GATE examination, this is your last chance. Primarily, I'm talking about people who are giving their or who want to do their MTech. MSc courses are also very, very nice. MSc colleges or universities can be, you can get the admission through GATB examinations, but for MSc, CUET PG is also there. But for MTech people, only GATB is there. CUET PG does not have that much good colleges for MTech students, right? Now, let me quickly go through the orientation. I want to be really objective about this. I want all of you to listen to this very, very carefully. And as we move forward, I would be transitioning into the biochemistry portion that I had to start today. Now, see, this is a crash course. We will be covering most of the portion of part B, that means biotechnology. And believe me, if you study well, study according to what I've told you, I'm sure you would be getting good rank. I'm not talking about qualifying. You can ask my previous year students also. I talk about getting ranks. So what you have to do is whatever I'm telling you. And one more important thing, GATB is not like GATE examination. It's not that difficult. Why am I saying that? Because there are no MSQ type questions. Most of you faced difficulties. Those who have given GATE examination this year faced difficulty while they were solving the MSQs of GATE. And the NAT also created a lot of problems for the GATE aspirants. The good news is that GATB does not have MSQ questions up till now. Another good news is the NAT, I mean numerical ability type questions, are not that heavy in GATB. GATB में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं बट उतने मुश्किल नहीं आते हैं जितना गेट में आते हैं. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू गेट. Another very important thing, those who have really studied nicely for GATE, take my word, you will find GATB very, very easy. बहुत आसान लगेगा. Now, I want to give you some points before we start. Daily revise. This is a crash course. I would be going at a fairly good speed because we have to cover the entire portion in the first month. That means starting from today up till 31st of March, I'm giving you a clear cut deadline so that you can assume or you can see your preparations going forward. Nothing is hawa hawai over here. I want to give you the clear perspective कि 31st March तक we would be aiming at completion of the part B portion, and maybe plus minus 3 or 4 days.
and after that we are looking at solving the PYQs for past 10 years. That is non-negotiable. वो solve करना पड़ेगा, because with that only we would be able to understand what kind of questions are asked in part A. बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, that they leave part A. पार्ट ए अगर आप छोड़ भी देते हो तब भी यू आर गुड, आप कोई भी कॉलेज पा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ यू डू पार्ट ए देन यू कैन अचीव टॉप कॉलेजेस, दैट आई कैन से. कैसे वो भी बताता हूँ अभी. तो डेली रिवाइज वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑन अ डेली बेसिस. जो पढ़ाया उसको कल पढ़ के आना पड़ेगा, दैट इज मस्ट. रिवीजन इज द की. पार्ट ए क्वेश्चंस को वी विल बी डीलिंग थ्रू रिवीजन. तो आपका पार्ट ए भी पूरा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. पार्ट ए में कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा. परचेज एनी PYQ बुक. आपके पास कोई भी PYQ बुक होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज द स्पीड एट विच यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैज मोर क्वेश्चंस देन गेट एग्जामिनेशन. गेट के एग्जामिनेशन में हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, कैन एनीवन टेल मी, कितने क्वेश्चन आते हैं गेट में? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गेट? 65 क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? 160 क्वेश्चंस आएंगे. टोटल 160 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओवर हियर. 100 questions of part B and 60 questions of part A. Obviously, you have to do, out of 100, you have to do only 60 questions in part B. 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं part B में. But when you are doing the 100, when you are choosing the 60 questions from part B, आपको ये पता होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे. You'll have to go through all the questions. 100 questions of part B. That requires some speed. अगर स्पीड नहीं होगी तो क्वेश्चन छूट जाएंगे. मान लीजिए यू लोअर डाउन द ऑर्डर, वो क्वेश्चंस थे जो आपको आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे. तो आई लीव इट अप टू यू कि आप कोई भी PYQ की बुक खरीद लीजिए, एनी PYQ बुक. दिस इज द बुक दैट समाधान लाइफ साइंसेज हैज. अगर आपको दिख रहा हो तो दिस इज गैडबी ब्लूप्रिंट. अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो you can purchase this. This is in the form of handwritten notes that is written by me only. ये आपको Amazon पे मिल जाएगी, but you are free to purchase it or not to purchase it. I won't be uh, asking you to do that. ठीक है? Now, next, I would be giving you DPPs also. DPPs मतलब daily practice problems. I would be doing, let us say, मैंने आज का class लिया. After the class, I would be sending you the notes as well as DPPs. That means the problems related to that. Test will also be scheduled. That means this particular course would be having tests also, and test will be scheduled as we go through the syllabus. जैसे जैसे syllabus खत्म होगा उस तरीके से tests आपके होते जाएंगे. Next, first 2 classes are free. That means आज का class and tomorrow's class would be free and the link would be given to you. आप वहाँ से class देख सकते हो, recorded class. First 2 classes. ठीक है? I would be creating a Telegram group after this session. Telegram group पे you would be getting the link, the recording link of class number 1. That means today's class. और कल मिल जाएगा आपको recordings of the second class. ठीक है? On the Telegram group. Meanwhile, I would be recording a video to show you how you can access the recordings on our website. So now we have transitioned to the website. अब website पे जाकर के recorded lectures देख सकते हो. I would be making a pure video regarding that. आप उसके through जाकर के देख सकते हो. ठीक है? Of course, only those students who have joined the course. बाकी students नहीं देख सकते. Next, Telegram group पे I would be giving you the PDF. That means you do not have to write anything in the class. Class में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Just listen to me. That is your job. Listen to me carefully. जो करा रहा हूँ वो करते जाइए. WhatsApp group जो बनाया है that is only meant for sending links or communication. Telegram group would be for the other things. That means for DPPs, for questions, for tests, for notes, everything. उसके लिए Telegram group मैं बना दूंगा अभी. जो भी क्वेश्चन है आपका, just send it on the WhatsApp group. I would encourage everyone to solve those questions that are mentioned in the WhatsApp group. अगर किसी को नहीं आता है तो I will be happy to solve that for you. Try to do it fully. दूसरी बात, I have thought of
doing this particular crash course in a specific way. I've said that the classes would be from 6 p.m. to 8 p.m. So the first 1.5 hours, जो 1.5 घंटा है शुरुआत का, 1 hours 30 minutes जो है, in that time we would be discussing part B questions. And in the last 30 minutes, I would be talking about part A questions. This is this is separate from what we would be revising for part A or part B, or we would be solving the questions, past 10 years questions in April. This is separate from this. शुरुआत का 1.5 घंटा we would be discussing part A. Last ka 30 minutes I would be bringing some new concepts. I would be discussing some things with you for part A. जो repeated questions आ रहे हैं उसके ऊपर हम discuss करेंगे last 30 minutes में part A पे. ठीक है, तो ये बात हो गया part A questions daily 30 minutes. Moreover, I would be making on my YouTube channel, there was a series that I was making last year that was called as Bhula series for part A problems. You can check that series out. आप उसको देख सकते हैं so that you can also get a stronger grip on part A. However, this will be dealt in the class as well. Course completion will be around the first week of April. May we would be completing everything that I have to teach. After that, we would be solving the PYQs, past 10 years PYQs. This is non-negotiable. आप अपने end पे करना शुरू कर दीजिए day 1 से ही. Start solving more and more and more and more PYQs. While you are solving PYQs, make sure that you are not only adhered to the correct answer. आप सिर्फ करेक्ट आंसर देख करके खत्म मत करिए. चेक आउट द अदर ऑप्शंस आल्सो. यू शुड नो व्हाई दे आर इनकरेक्ट. वो पता होना चाहिए क्यों इनकरेक्ट. जल्दी से मुझे बताइए गाइस, अप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कुछ समझ नहीं आया हो? इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? या गुड, थैंक यू सो मच. इज देयर एनी क्वेश्चन? नो. अब एक अच्छी सी चीज आपको दिखाता हूं मैं. दिस इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर गैट बी. पिछले साल के कट ऑफ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के है. 2025 में मतलब दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट फोरसीन. ये बहुत ही अब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कट ऑफ. अदरवाइज द कट ऑफ वाज अराउंड 127, 112, 121, 123. तो आप कह सकते हैं इट वाज समवेयर अराउंड 120 to 130 इन द पास्ट 5 years. 2025 में कट ऑफ 145 चला गया था, बट जनरली इतने के बीच में रहता है. दिस इज, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं गैट बी में? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 240. अब आप में से जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से आए या कोर्स नहीं करेंगे, लिसन टू मी, व्हाट योर टेक्निक शुड बी टू वर्क आउट दिस. कैसे कैसे अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के कैसे पढ़ सकते. Those who would not be joining the course, they are just joining the Telegram. Yeah, they have just joined from the Telegram group. What should be your aim? आप एक काम करिए. सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि पार्ट बी के पहले टारगेट करिए. योर फर्स्ट एम शुड बी पार्ट बी. पार्ट बी से आपको 180 मार्क्स चाहिए. आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सिक्योर. कितने क्वेश्चंस करने हैं? आउट ऑफ 100 यू हैव टू डू 60 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. तो यहाँ से इफ आई कैन सिक्योर 180 मार्क्स, आई एम सेफ. मुझे कोई भी कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, तो योर फर्स्ट एम शुड बी सिक्योरिंग पार्ट बी, नॉट रनिंग आफ्टर पार्ट ए. पार्ट ए आपका साइड बाय साइड चलना चाहिए. पार्ट बी मेन फोकस होना चाहिए. अब देखो, पार्ट ए में भी, इन पार्ट ए ऑल्सो 15 questions will be from the biology portion. 15 questions from the biology portion. ठीक है, 15 questions from the biology portion. तो ये जो होगा इसका वेटेज, what is the weightage of each of this? It is 1 marks. That means part A हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. तो ये 180 प्लस 15 अगर हम लोग कर रहे हैं तो इट इज 195. तो अगर हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हैं तो आई एम 195 मार्क्स विद ओनली स्टडिंग बायोलॉजी. और हम 195 मार्क्स में वी कैन गेट एनी गुड कॉलेज. ठीक है, बचता क्या है सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. दिस इज लेफ्ट.
मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कि हाउ और व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। अब पूरा पूरा 11th 12th यू कैन नॉट स्टडी अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आई हैव ऑलरेडी मेड अ यूट्यूब वीडियो इन विच आई हैव रिटन, इससे पहले एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, मैंने उसमें बता रखा है स्पेसिफिकली विच टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फॉर पार्ट ए। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, उतना पढ़ लीजिए। यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी वेयर बिटवीन 8 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स सेपरेटली, आप उतना कर लोगे। जो लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, वो क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, बट दिस आई एम टेलिंग यू फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग द कोर्स। दूसरी बात, अगर आप पार्ट ए कर रहे हो कोई क्वेश्चन, तो यू शुड बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, -1/2 नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए। पार्ट बी हैज लोअर नेगेटिव मार्किंग, -1/3 होती है। तो अगर पार्ट ए का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वी शुड बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। दूसरी बात, पार्ट बी को हमें 60 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, एंड फॉर दैट आई हैव टू रीड ऑल द 100 क्वेश्चंस। स्पीड बहुत तेज चाहिए, सो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ड्यूरिंग द टाइम। In this particular course, I will be sharing daily one practice set problem with you. गैटबी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाऊंगा और रोज आपसे शेयर करूंगा। आपको उसको करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस तो हम क्लास में करेंगे, एंड सम क्वेश्चंस आई विल बी शेयरिंग यू फॉर योर डीपीपी। 10 क्वेश्चंस के अराउंड रोज शेयर करूंगा। यू विल हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अगले दिन उसका आंसर शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन चेक दैट आउट। इज एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क? Right, good. So now let us move on to the chapter. सबसे पहले आज we have to talk about biochemistry. While I am teaching you, I will be specifically highlighting कि which portion is important for the part A also. तो उसको भी ध्यान से part A के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। I will be sending you this entire PDF. You can copy it down. अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं या जैसे भी आप चाहो, you can do it. अब जैसे कि I would be talking about a little bit about isotopes, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, उस तरीके की एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। दिस कम्स इन बायोकेमिस्ट्री, दिस कम्स अंडर केमिस्ट्री, बट इट विल बी आस्क्ड इन पार्ट ए ऑफ योर प्रिपरेशंस। तो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि सर ने ये पार्ट ए के लिए बताया था, ठीक है। नाउ व्हेन आई से बायोकेमिस्ट्री, बायो सिंपली मीन्स सेल्स। whenever I say biochemistry, bio का मतलब होता है cells. Chemistry, in chemistry what do we study? We study about atoms, we study about molecules. So why was the new subject biochemistry born? आखिर नया ये biochemistry क्यों लेकर के आए? Just give me a minute. Why was this new subject born? Because not every element is present inside our body. हमारे शरीर के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द एलिमेंट्स इनसाइड अवर बॉडी। व्हेन वी वांट टू ओनली स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स इनसाइड अवर बॉडी, व्हाट डू? वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री ऑल इन ऑल इज अ स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि सर व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए एंड डीएनए भी आता है, ठीक। प्रोटीन्स में एंजाइम्स भी आता है। तो all of these are biomolecules. So when we want to study biomolecules, then we have to go to biochemistry. So there is a stark difference between biochemistry and chemistry. In chemistry, we study about all the elements. In biochemistry, we are specifically focusing upon the elements that are present inside your body. अब दूसरा सवाल उठता है, सर ये सब तो ठीक है, सर what elements are present inside our body? So the elements that are present inside your body are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium. CHONSPK. यहाँ से क्वेश्चन गेट में भी आया है, CSIR में भी आया है, एंड गैट भी पार्ट ए में भी आया हुआ है। पूछा गया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट।
तो याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे कंप्राइज ऑफ 96% ऑफ द लिविंग मैटर। 96% हर चीज का ये है आपकी बॉडी के अंदर, इनसाइड योर बॉडी। नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे कंप्राइज ऑफ 96% ऑफ लिविंग मैटर। P, Ca, S and K, they comprise of 3% of the living matter and rest is only 1%, जो कुछ है बाकी 1% है। तो पूछा जा सकता है which of the following elements comprise mainly of the living matter? C, H, O and N. These are the highest present elements inside the living matter. तो हम कह चुके हैं, अभी तक हमने क्या कहा, we just said that the study of biomolecules, that means the molecules that are present inside the cells, इसी की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड बायोमोलिक्यूल्स में क्या आता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन इज विद मी अप टिल हियर। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। श्रीजीत पूछ रहे, सर इफ वी हैव स्टडीड फॉर गेट, डू वी नीड दीज क्लासेस फॉर सेक्शन बी? You do not need exactly the classes for section B. The problem is to be disciplined. क्योंकि अगर आप जनरली, जो मैंने देखा है कि if you do not take the classes, what happens is you are not able to study daily. आप एक रिदम में या डिसिप्लिन में नहीं बन पाते। If you are able to study on your own on a daily basis, rigorously practicing and studying, अगर आप खुद से कर सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर सकते, फॉर दैट दीज क्लासेस आर एसेंशियल। सर वो डू वी रिक्वायर ऐप फॉर एसएलएस? ये वेबसाइट के थ्रू अब की बार हो जाएगा। अब की बार वेबसाइट के थ्रू हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, यस। Where can we find the recorded lectures? I would be making the first two recordings would be available on the Telegram group that I would be making after the class. Okay. After that, the third recordings would be I would be making a short video in order to explain you how you can access the recorded classes from our website. Okay. I would be making a video. Don't worry about that. First, focus upon this class. Don't worry about the recordings. Right? Did you understand my point, everyone? यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया? गुड, ठीक है। नाउ अब अगली बात ये है कि हाउ डू दीज एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these elements are combined with each other, right, in order to form the amino acids, in order to form the carbohydrates, in order to find vitamins, lipids। ये सब बनाने के लिए these elements would be combined together with some kind of bonds। कौन से bonds हैं? बॉन्डिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए की केमिस्ट्री से यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आप देख भी सकते हैं और मैं बता भी दूंगा। तो बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके से बॉन्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। जो लोग केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। थिंग्स आर डिफरेंट when we are talking about biochemistry, because over here we are only talking about CHONSPK, not about the other elements. Bonds can be divided into two types on the basis of energy. Sir, what do you mean by energy? Energy का मतलब है कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, which bond is strong, which bond is weak। कोई बॉन्ड स्ट्रांग है, कोई बॉन्ड वीक है, उसके बेसिस पे we are dividing the bonds। The first type of bond is covalent bond। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। द सेकेंड बॉन्ड इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज अ वीक बॉन्ड। कमजोर बॉन्ड होता है। अब सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन वी वुड बी मूविंग ऑन टू द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर हम देखें कि बॉन्ड्स में, दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन गैट बी। यहाँ पे पार्ट ए में एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन वन बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब है how many electrons are shared? Two electrons are shared. When two bonds are present, four electrons are shared. Obviously, one atom would be sharing one electron. One atom that is present over here would be sharing one electron. So when the single bond is present, two electrons are shared.
When a double bond is present, 4 electrons are shared. When triple bond is present, for example, nitrogen, N triple bond N, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे guys? 6 electrons शेयर होंगे. So now, if I am talking about covalent bonds, why and how are covalent bonds formed? Covalent bonds are formed by sharing of electrons. तो ऐसे elements, those elements that can fulfill their octet or doublet by sharing the electrons, form covalent bonds. जैसे कि if I am talking about hydrogen, hydrogen has only one electron, so it cannot obviously fulfill its octet. It will fulfill its doublet, duplet. यहाँ पे one electron from this hydrogen, one electron from this hydrogen, they would be sharing it and they will be fulfilling their doublet. What about oxygen? Oxygen has 6 electrons. ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? 2 electrons are shared in this and 2 electrons are shared in this. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. टोटल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर shared are 4. Obviously, oxygen has 6 electrons, so 2 comma 4. The electronic configuration on the outermost shell is 4. तो 4 electrons are shared. इस तरीके से होता है. 8 electrons होते हैं सॉरी ऑक्सीजन में. 2 comma 6 और 2 electrons एक एटम शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एटम शेयर करता है और टोटल मिला करके 8 ऑक्टेट पूरा हो जाता है. दिस इज हाउ द ऑक्सीजन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन. This type of sharing is equal sharing. This is a hydrogen and this is a hydrogen. Both are hydrogens. Similarly, this is one oxygen, this is another oxygen. Both are oxygens. That means both hydrogens or both oxygens, they are of same type, they are of the same element. Therefore, इनकी electronegativity भी same होती है. They have the same electronegativity. That means none of them can pull the electrons towards itself. Both of them has equal affinity of pulling the electron. तो इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में रहता है. इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट समवेयर इन द मिडिल. इट कैन नॉट बी टेकन ओवर हेयर, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर हेयर. दोनों तरफ में से कहीं नहीं जा सकता बिकॉज द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. तो कह सकते हैं व्हेन इक्वल शेयरिंग इज प्रेजेंट. सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वल शेयरिंग? हाइड्रोजन, H2 molecule, oxygen, O2 molecule, N3 molecule. These are all examples of equal sharing. In case of equal sharing, there is no polarity present. कोई polarity नहीं है. Polarity का मतलब क्या हो गया? What do you mean by polarity? When one atom is pulling the electron towards itself more, that means it will be partially negative. And when one other atom is not able to pull the electron towards itself, it should be partially positive. So what happens? पोल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है. आई वुड बी शोइंग यू विद द एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको. बहरहाल ये नॉन पोलर हो गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डू नॉट शो पोलैरिटी. इनमें पोलैरिटी नहीं देखने को मिलती. Whereas दूसरे टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, अ सेकेंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ अनइक्वल शेयरिंग. सर कोई एग्जांपल? यस, वाटर, H2O, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज वन बॉन्ड, दिस इज वन बॉन्ड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट दैट मच. हाइड्रोजन विल नॉट बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, वेयर एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसीलिए वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. बिकॉज ऑफ विच ऑक्सीजन इज पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव. इसी को बोलते हैं पोलैरिटी. नाउ व्हाई? बिकॉज 2 पोल्स आर फॉर्म्ड ओवर हेयर. एक तो ऑक्सीजन नेगेटिव पोल बन गया एंड हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पोल. दैट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल. या पोलैरिटी डेवलप्स, या दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है, दीज 2 bonds आर रेफर्ड टू एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अगेन, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. गिव मी अ थम्स अप गाइस अगर कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों टाइप समझ में आ गए. बोथ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर क्लियर. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस तो बताइए. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव अप टिल हियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं.
सर विल N2O बी लेस, अभी आऊंगा उसके ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर अभी आऊंगा। जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कराऊंगा, आई वुड बी शोइंग यू अ क्वेश्चन इन विच आई वुड बी कंपेयरिंग द पोलैरिटी। अभी उस पे जाऊंगा, कंपैरिजन पे भी जाऊंगा। यहां तक समझ में आ गया हो तो बताइए। चलिए, अदर बॉन्ड्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, इनसाइड बायोमोलिक्यूल्स देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओनली। कोवेलेंट बॉन्ड के ही अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद होगा, इट इज शोन इन और इट इज सीन इन न्यूक्लिक एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, दे आर शोन इन प्रोटीन्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स में देखने को मिलते हैं। Glycosidic bonds, they are shown in carbohydrates. All of them are different examples of covalent bonds only. तो पार्ट ए में एंड पार्ट बी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल दे देगा आपको एंड यू वुड बी चूजिंग कि इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी की। आपको ये बात जानते होगे आप कि water is considered as universal solvent. Water is considered as universal solvent and water is polar in nature. अभी मैंने दिखाया भी था कि why is water considered as polar, because of unequal sharing that is seen over here. Polar compounds, जितने भी polar compounds हैं, all the polar compounds are very easily soluble in water. Why? Because like dissolves like. एग्जाम्पल के तौर पे you take a small amount of sugar, शुगर को पानी में डाल दीजिए। नाउ शुगर इज पोलर इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पोलर इन नेचर होता है। क्यों? देर आर सो मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कभी बनाया होगा विच वी विल बी सीइंग, तो उसमें OH के ग्रुप बहुत सारे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट OH ग्रुप वी कैन से दैट द पोलैरिटी ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट इज देयर। बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी इट solubilizes इन वाटर, पानी के अंदर बहुत आसानी से घुल जाता है। सेम थिंग अप्लाइज टू सॉल्ट। NaCl आसानी से घुल जाता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात यहाँ पे समझ में आई। अगर हम ऑल्टरनेटिवली वी कंसिडर ऑयल, ऑयल इज नॉट पोलर, यू कैन कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ अ लिपिड। लिपिड को अगर पानी में डालिए तो इट इज नॉट पोलर, पोलर नहीं है वो। इफ इट इज नॉट पोलर इट विल नॉट सॉल्युबलाइज इन वाटर। आपको लिपिड या ऑयल अलग दिखाई देगा, यू विल सी इट सेपरेटली फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इट डज नॉट गेट सॉल्युबलाइज्ड। द रीजन इज इट इज नॉट पोलर। ठीक है, यहाँ तक की भी बात समझ में आई होगी। So now, up till now, what we have discussed a little bit. I have given you an overview about biomolecules. Then next, I gave you a little bit information about the covalent bonds, and we have said that covalent bonds are strong bonds. इसके अलावा मैंने बताया है कि covalent bond दो तरीके का होता है, with where equal sharing and unequal sharing is seen. Equal sharing में polarity नहीं देखी जाती, unequal sharing में polarity is seen. इतनी बात हम लोगों ने अभी तक करी है। नाउ कमिंग टू द वीक बॉन्ड्स, यहाँ पे मैं अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री पर्सपेक्टिव। आयनिक बॉन्ड केमिस्ट्री में आपको दिखेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के तौर पे देखा जाता है, बट अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री। आयोनिक बॉन्ड अगर ड्राई कंडीशंस में पढ़ेंगे आप, विच इज सीन इन केमिस्ट्री, ड्राई कंडीशंस में, देन आयोनिक बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ड्राई कंडीशंस मतलब अब इनसाइड द ह्यूमन बॉडी मोस्टली द कंडीशंस आर एक्वस। सेल के अंदर सब कुछ पानी ही तो है, तो एक्वस कंडीशंस आर सीन इनसाइड द सेल। तो we cannot say that dry conditions are there. Dry conditions can be seen outside the body. So under dry conditions ionic bond is strong, but we are not studying that condition over here. Under aqueous condition it is considered as a weak bond. आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर ए एक एलिमेंट है एंड फ्रॉम दिस एलिमेंट एन इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, तो ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज केटायन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। वहीं अगर बी एक एलिमेंट है, इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स बी माइनस एंड दिस इज रेफर्ड टू एज एन एनायन। So these are ions that will be used for the formation of your ionic bond.
दूसरी बात, डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज लार्ज। जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, when we were discussing about non-polar covalent bond, what was the electronegativity difference between the two elements? When we were discussing about non-polar covalent bonds, what was the electronegativity difference between the two elements? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था? Zero. Obviously, electronegativity difference was zero because the same type of elements were used. दोनों एक ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है. अगेन, देर इज अ दिस इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करोगे तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई. क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, NaCl. क्लोरीन हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेंशियल, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा. सोडियम डज नॉट हैव दैट. सोडियम के पास ऐसी सुविधा नहीं है. तो देर इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जहाँ पे मैंने वही चीज बताई है बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड. होपफुली ये समझ में आ गया होगा, इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है. जस्ट दैट व्हाट इज आयनिक बॉन्ड वो मैंने आपको समझाया. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, इतनी बात हमें समझ में आ गई. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन complete charge and partial charge. Abhi we were talking about water molecule and there we said that water molecule has partial charges. Hydrogen has a partial positive charge and oxygen के पास partial negative charge होता है. ऐसी कुछ बात हमने की थी. बट सोडियम क्लोराइड के बारे में जब हमने कहा तो हमने सिर्फ कहा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. वी डिड नॉट say the word partial over here क्योंकि यहाँ पे charges are complete not partial. याद रखिएगा जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जरा देखें यहाँ पे, when the water molecule was formed, the electron was not completely donated by hydrogen. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करने को तैयार है. हाइड्रोजन इज, it has not donated the electron. अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, if the hydrogen was donating the electron, hydrogen would have the positive charge. तब हम कहते हैं हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है. बट हाइड्रोजन इज जस्ट शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन क्या कर रहा है गाइस? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है. इट डज नॉट हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के नजदीक ज्यादा हैं. दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये अंतर है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन partial charges and complete charges. In case of sodium chloride, sodium अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है. It has given the electron to the chlorine and chlorine ने accept कर लिया है. That is why the charges are complete. Complete transfer of electron is seen over here and यहाँ पे partial transfer of electron is seen. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट ए में, व्हाट इज मेंट बाय एप्सिलॉन, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. वी कॉल इट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो. अच्छा, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट चार्ज एंड पार्शियल चार्ज गाइस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड. यहां तक सबको समझ में किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, आई वुड बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज. गुड, ओके. चलिए, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पोर्शन. What is meant by एप्सिलॉन या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? लेट अस टॉक अबाउट दैट. It is the measure of ability of a solvent to reduce the electrostatic force between the charged particles. मतलब क्या हुआ? Suppose this is A plus and B minus. This is a charged molecule where A is plus, B is minus. Charged है ये. And they are now kept in acetone in one case, and in the other case they are kept in water.
तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये एक एबिलिटी है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। किसकी एबिलिटी है? सॉल्वेंट की। क्या करने के लिए? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मींस आयनिक इंटरैक्शन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में देयर इज एन आयनिक इंटरैक्शन। और ये जो सॉल्वेंट है, दिस सॉल्वेंट कितना ज्यादा इनका इंटरैक्शन रिड्यूस कर सकता है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू रिड्यूस दिस इंटरैक्शन between the charged entities, that is referred to as dielectric constant. उसी को dielectric constant कहते हैं. Acetone is having lower dielectric constant and water is having a higher dielectric constant. याद रखिएगा, यहां से पार्ट ए में क्वेश्चन आया है, ये गेट में भी आया हुआ है. देखिए यहाँ पे, which of the following statements about the properties of water is correct? It has low dielectric constant. No, water is having a very high dielectric constant. It forms hydrophobic bonds with itself. Water hydrophobic bonds बनाएगा क्या? Water तो hydrophilic bonds बना सकता है. It has disordered structure in liquid state. नहीं. It is a dipole with negative end at the oxygen atom. ये क्या है? Dipole है. मैंने बताया भी था, water is having a polar structure, wherein the oxygen is having a negative pole and hydrogen is having a positive pole. ठीक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर. दिस हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन. अभी आगे गैट बी के क्वेश्चंस करेंगे हम. चलिए नेक्स्ट. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, वीक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ the first weak bond we have completed, and that was ionic bond. Now we are moving towards the hydrogen bond. ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि या यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में अक्सर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हेन द denotion of hydrogen bond is like this: OH, and this is the hydrogen bond. Obviously, always remember, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा 3 डॉट्स से दिखाया जाता है या 3 डैशेस से दिखाया जाता है. It is shown with 3 dashes. This bond is also between hydrogen and oxygen. This bond is also between hydrogen and oxygen. But this is shown by a strong line. ये covalent bond है. And this is a hydrogen bond. ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करने के लिए X, H and 3 lines and Y. X क्या है? वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ पे आप O से कंपेयर कर सकते हैं, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इट इज ज्वाइंड विद हाइड्रोजन थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड, and then a hydrogen bond is present, and then again another electronegative atom is present which can have lone pair of electrons. तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन is also very electronegative, और इसके पास there is lone pair of electrons also. That is why this type of bond is called as hydrogen bond. इसको hydrogen bond कहते हैं. यहाँ पे this is the donor of hydrogen and this is the acceptor. दूसरी important बात, the second important thing of hydrogen bond is that hydrogen bond can only form when the electronegativity difference between the donor and acceptor is greater than or equal to 0.9. क्या कहना चाहते हो सर? This is the donor, this is the acceptor. इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9, ओनली देन द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. What is the difference between the electronegativity? 3.5 minus 2.1, this is 1.4. So can hydrogen bond form? Of course it can. अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे इफ आई केप्ट फ्लोरीन ओवर हियर, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दीजिए एंड प्लेस अ फ्लोरीन ओवर हियर, विल द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म? डेफिनेटली. 4 minus 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 1.9. इसी तरीके से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.9. दैट मीन्स अगर आप इफ यू रिमूव ऑक्सीजन एंड प्लेस अ नाइट्रोजन ओवर हियर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म. बट
अगर मैं कार्बन लगा दूं यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन आई प्लेस अ कार्बन, will this hydrogen bond form? No. Why? Carbon has electronegativity 2.5, hydrogen has 2.1. The difference comes out to be 0.4, which is less than 0.9. We have to get a difference of greater than or equal to 0.9. इसीलिए ये bond नहीं बन सकता, it cannot form. नेक्स्ट हाइड्रोजन 2.1, अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दें तो विल द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म? ऑब्वियसली नो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, तो वी कैन नॉट फॉर्म द हाइड। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आया हुआ है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन पार्ट ए में भी आया हुआ है और पार्ट बी में भी पूछा हुआ है, रिपीट में आया है। विच एटम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ऑब्वियसली द आंसर इज फ्लोरीन। The electronegativity of fluorine is 4.0. Please remember this. ये क्वेश्चन आ चुका है। Give me a thumbs up, guys. Is everything clear up till now? यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? किसी का कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ओके। अच्छा, दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन आया हुआ है पार्ट ए के अंदर, पूछा है इसमें कि विच ऑफ द बॉन्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दे आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, जो पानी आपको नजर आता है, द वाटर दैट यू कैन सी इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। अदरवाइज पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं दिखता, इट वुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। और अगर लिक्विड स्टेट में नहीं होता तो आपको पता है ना, द वाटर ओनली। तो अगर लिक्विड ही नहीं होता तो ऑब्वियसली द लाइफ वुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। इसका एग्जाम्पल एक और, आप सोच रहे होंगे कि कोई और एग्जाम्पल दे, तो H2S गैस को देखिए, सल्फर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सल्फर भी सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन जैसा, बट हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ विच द हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, बिकॉज ऑफ विच H2S इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। तो H2S आपको लिक्विड स्टेट में इसीलिए नहीं नजर आता, यू कैन नॉट सी H2S इन द लिक्विड स्टेट बिकॉज इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। इवेपोरेट, उड़ जाती है, गैस है, बट लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिक्विड चाहिए। तो इसीलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है पार्ट ए में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो लास्ट टाइप का, जो वीक बॉन्ड होता है उसके बारे में, एंड दैट इज वैंडर वॉल्स बॉन्ड। ये सबसे लो एनर्जी बॉन्ड होता है, सबसे कम एनर्जी का। दैट मीन्स इट कैन बी ब्रोकन वेरी वेरी इजिली। अभी तक जितने बॉन्ड्स के बारे में बात किया है, कोई मुझे बताएगा विच बॉन्ड वुड हैव द हाईएस्ट एनर्जी? कौन से बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? विच बॉन्ड विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी? यस, ऑब्वियसली इट शुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही कहा आपने। कोवेलेंट बॉन्ड शुड हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, अभी इसका भी सीक्वेंस बताना है, वो भी आया है एग्जाम में। तो वैंडर वॉल्स बॉन्ड वीक है और इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की वजह से बनता है। इट इज बिटवीन इंटर मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। इट कैन फॉर्म इन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोथ। जरूरी नहीं है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बने या नॉन पोलर के बीच में बने, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सबसे खास बात, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वैंडर वॉल्स, इज इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। दोनों तरीके का हो सकता है।
जब तक दूर दूर है तब तक इट विल शो अट्रैक्शन, जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो it will start showing repulsion. That means it can be of both types, attraction as well as repulsion. But primary point is कि यहाँ पे ये बहुत weak होता है, it is the weakest bond. खैर, इतनी बातचीत हम लोगों ने कर ली about different types of bonds. लास्ट जो है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ये रह गया था एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. लेट अस जस्ट क्विकली डिस्कस दिस. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, इसको समझने से पहले लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी है, इसके अंदर ऑयल की एक ड्रॉप डाल दीजिए. द ऑयल ड्रॉप वुड बी फ्लोटिंग ऑन वाटर. एक दूसरी ऑयल की ड्रॉप डाल दीजिए, इट विल ऑल्सो फ्लोट. अब आपने कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल दी, व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म एन एग्रीगेट. आपस में जुड़ जाएंगी ये ऑयल ड्रॉपलेट्स. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस. आपस में जुड़ जाएंगी. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर बट दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद द वाटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नेचर. ऑयल पोलर नहीं है, इट इज नॉट पोलर, सो इट कैन नॉट इंटरैक्ट विद वाटर. इट हैज टू इंटर, इफ इट हैज टू इंटरैक्ट विद समथिंग इट विल हैव टू with lipid molecules only. तो वो जब इंटरैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में सपोज करिए पानी है, वाटर, एक ग्लास में वाटर लिया, उसके अंदर एक प्रोटीन डाल दिया, यू हैव पुट इन अ प्रोटीन. Now what will happen, the protein will start folding on itself because of the hydrophobic interactions. Because जो amino acids water से interact नहीं कर सकते, the amino acids that cannot interact with water will start interacting with each other, will start coming close to each other. Because of that only the folding of the protein will be seen. Very very important question, has been asked in JAM, GAT-B, GATE, सब में आया हुआ है. तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं. दे डिस्क्राइब द फोर्सेस दैट कॉज नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू क्लस्टर टुगेदर टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद वाटर. पानी से कॉन्टैक्ट कम करने के लिए दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. It plays a very important role in protein folding and formation of cell membrane. Cell biology में जब जाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. What is the role of hydrophobic interaction in cell membrane? ये क्वेश्चन देखिए, गेट का मैंने उठाया है बट ये हर एग्जाम में आया हुआ है. The following types of interaction is mainly responsible for aggregation of proteins in dilute solution. Aggregations of the protein, that means आपस में जुड़ना, bond banana, and that is because of the hydrophobic interactions. Hydrophobic interaction is the correct answer. तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया गाइस, बी आंसर हो गया. ठीक है, चलिए बढ़िया. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर दैट करेक्टली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इसका आंसर क्या होगा. Yes, good. Which of the following is an example of non-covalent interaction in the proteins? Non-covalent मैंने आपको बताया था covalent के examples में, तो this is directly from your copy only. Covalent के examples में disulfide linkage, phosphodiester bond, peptide bond, all of them are examples of your non all of them are examples of your covalent bonds. जरा यहाँ पे देखिए, ये phosphodiester, peptide, disulfide, glycosidic, these are all the examples of strong bonds या covalent bonds. But जो आपका salt bridges हैं, they are not covalent in nature. ये strong नहीं होते salt bridges. This is the correct answer. तो correct answer क्या हो गया, A हो गया इसका. A is the correct answer. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं. मोल कॉन्सेप्ट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट ए क्वेश्चंस. पार्ट बी में तो इतना नहीं पूछा जाएगा बट इट विल बी आस्क्ड इन पार्ट ए, इसीलिए इसको बताना पड़ेगा. आप सभी लोगों ने, मेनी ऑफ यू वुड हैव स्टडीड मोल, एक्चुअली एवरीवन वुड हैव स्टडीड मोल कॉन्सेप्ट. द क्वेश्चन इज हाउ मच यू रिमेंबर अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट. मोल का मतलब क्या होता है. व्हेन आई से मोल,
What do you mean by that? Mole is actually a unit. जैसे कि when I say kg, kilogram, gram, meter, kilometer, candela, unit, what are these? These are actually the units of certain quantities. डिस्टेंस का यूनिट हो गया या वेट का यूनिट हो गया, इस तरीके से। तो जब हम केमिस्ट्री में किसी यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज मोल। किसी भी चीज का इफ आई एम टेकिंग 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ ब्रिक्स ले लीजिए, ईंटें हैं, 6.023 इंटू 10 to the power 23 ईंटें, ब्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ ब्रिक्स। इतनी साइकिल्स ले लीजिए, दिस इज 1 मोल ऑफ साइकिल। इतने एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम मान लीजिए ले लीजिए, 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. तो what will you understand from this? 1 mole of hydrogen atoms. अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर और इट इज मेंशन्ड एज Na। 6.023 इंटू 10 to the power 23 क्या चीज है? इट इज एवोगैड्रो नंबर और Na। अब दूसरी बात समझिए, कई बार एग्जामिनेशन में मोल निकालने को दे देता है और ये बहुत कॉमनली आता है पार्ट ए के क्वेश्चंस में, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दे आर गिविंग यू वेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, आपको कह दिया इतना वेट एलिमेंट का लिया है एंड यू नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट, तो क्या आप उसका मोल निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट, दिस विल गिव यू द मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। अगर नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कह दे कि आई हैव 1000 एटम्स ऑफ दिस, कैन यू फाइंड आउट द मोल्स? यस, 1000 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस विल गिव मी द मोल्स ऑफ एटम्स। अगर मुझे कह दे कि नहीं, गैस पे गैस का वॉल्यूम दे दिया है एट STP, ठीक है, तो अब मान लीजिए अब होता क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इज 22.4 लीटर्स। तो आपको मान लीजिए कुछ भी वॉल्यूम दिया है, सपोज करिए कि 5.8 दिया हुआ है, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 22.4 एंड यू वुड बी गेटिंग द मोल्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या है गाइस? एटम्स है, मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल कब होता? जब हम N2 लिखते। बट व्हाट इज दिस? दिस इज द एटम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा हमको in order to calculate the moles, because we know that weight upon molecular weight और atomic weight। तो 28 अपॉन 14, एक एटम का वेट कितना लेते हैं नाइट्रोजन के? 14। तो 28 अपॉन 14 2 मोल्स। सिमिलरली सल्फर, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम्स दिया हुआ है, 32 अपॉन 32, 32 इज द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, 1 मोल। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अगेन एटॉमिक वेट, एटम दिया हुआ है, तो 2 अपॉन 1, 2 मोल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन एटम का तो वेट दैट वाज 14 ग्राम, बट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वेट 28 ग्राम, 28 बाई 28 1। सिमिलरली ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना होता है? 180, C6H12O6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा। ग्लूकोज का वेट दिया है 60 ग्राम, and you have to find out that in this 60 gram how many moles are present। 60 अपॉन 180 कर दीजिए, 1/3 मोल्स, यानी कि 0.33 मोल्स। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ तक की बात हमें समझ में आई या नहीं आई? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्या यहाँ तक सब लोग कर लोगे? तो मोल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। चलिए एक जल्दी से गैट बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और मोल्स के ऊपर, और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिए और मुझे बताइए, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, क्या आंसर होगा, फटाक से बताइए। ये गैट बी के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सेट में आए हुए हैं, और इसी तरीके से हम लोग रोज कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट मी जस्ट जूम अ बिट। क्या आंसर होगा भाई? ओके, चलिए देखें। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 6.023 10 to the power 23 कार्बन आइटम्स, 180 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने बताया था कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। 180 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के बराबर नहीं होगा। किसी ने डी भी आंसर दिया था, दिस कैन नॉट बी करेक्ट, ये आंसर गलत है, ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज ए, 6.02 इंटू 10 to the power 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये बताओ बेटा जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस? क्या आंसर होगा इसका? यस, वेरी गुड, इट शुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही कहा। कोवेलेंट बॉन्ड शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस प्राइमरीली अराइज ड्यू टू, चलिए इसके ऊपर अभी आगे आएंगे। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस, फॉल्स ऑफ रैपिडली? यस, इट इज वैंडर वॉल इंटरैक्शन। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन नहीं होता, सबसे वीक इंटरैक्शन होता है, बहुत जल्दी हट जाता है। अब ये जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, जो अभी अभी हम लोगों ने मोल्स के बारे में पढ़ा है। आई वॉन्ट यू ऑल टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaCl, फटाक से कैलकुलेट करिए। अच्छा, ये मोलैरिटी पूछ रहा है यहाँ पे, बट चलिए मुझे मोल्स तो बता सकते हैं ना। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ NaCl, एटलीस्ट मोल्स तक बताइए, मोलैरिटी में बता दूंगा आगे। व्हाट शुड बी द मोल्स, मोल्स कैलकुलेट करके बता दीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोल्स नहीं है बेटा, मोल्स नहीं है अभी। मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपने एम लिख दिया है, मतलब मोलैरिटी हो गया आंसर। यहाँ पे हमने केवल मोल्स कैलकुलेट करने को कहा था, तो मोल्स हो गए। वेरी गुड, 0.1 मोल्स हो गए। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कैसे कह रहे हो 0.1, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर करेंगे तो इट विल बी 5.85 अपॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 58.5, तो ये 0.1 मोल्स हो गया। अगर मोलैरिटी की बात की जाए तो अभी आगे आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी ऑल्सो, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम यहाँ पे कहें मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन, अगर ml में दिया हुआ है तो ml करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आया 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 500 दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी कितना? कौन बताएगा भाई मोलैरिटी कितनी आएगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी? 0.2, करेक्ट, 0.2 आ जाएगी मोलैरिटी। हालांकि मैंने भी मोलैरिटी पढ़ाया नहीं है, बट लगे हाथ ये भी हो। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दिया हुआ था, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस प्राइमरीली अराइज ड्यू टू एंट्रोपी गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर ये है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस प्राइमरीली अराइज ड्यू टू। क्यों होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, प्राइमरीली क्यों अराइज होते हैं? देखिए समझने की कोशिश करिए कि दिस इज अ वाटर ग्लास, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर हमने पानी रख दिया है, दिस इज वाटर। नाउ सपोज दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब होता क्या है, when you drop a lipid molecule in water, what happens is the water molecules, they will form a cage like structure around the lipid molecule. फिर से समझेंगे, when I am putting a lipid molecule inside water, जब लिपिड पानी के अंदर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके चारों तरफ अराउंड द लिपिड मॉलिक्यूल एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. The formation of this cage-like structure produces orderness inside the water. पानी में एक ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डरनेस बन जाता है. ठीक है. अब अगर आपको पता होगा कि डिसऑर्डरनेस और ऑर्डरनेस के बारे में हम जानते हैं कि एंट्रोपी से रिलेट कर सकते हैं. एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस. तो वी नो दैट डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. बट यहाँ पे बिकॉज वाटर एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से ऑर्डरनेस बढ़ता है, डिसऑर्डरनेस नहीं, ऑर्डरनेस बढ़ता है. इसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी विल डिक्रीज. एंट्रोपी डिक्रीजेस. आपको पता है ना, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस. बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ऑर्डरनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस. लेकिन अब हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कब होंगे, मान लीजिए आपने एक और लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे डाल दिया. Now, these lipid molecules will start interacting with each other. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये एक ब्रिक है, एक दूसरा ब्रिक यहाँ पे लगा दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए. What will happen? इनका टोटल सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड टू वाटर विल डिक्रीज. इन द सेम वे, जो यहाँ पे इंडिविजुअल लिपिड्स थे, अब क्या हो गए, दे आर एग्रीगेटेड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक इंक लिंकेजेस. ये एग्रीगेट हुए तो देयर एक्सपोज सरफेस एरिया इन द वाटर डिक्रीजेस. एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो गया. जब एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो गया तो जो केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था दोनों के अराउंड अलग अलग, उसमें से सम वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड. बिकॉज अब केज क्या होगा, बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया, एक्सपोज सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड, तो द केज दैट विल बी फॉर्म्ड अराउंड द इंटायर टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, इट विल बी स्मॉलर. जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ऑर्डरनेस कम हुई, ऑर्डरनेस इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, द एंट्रोपी वुड इंक्रीज. गिव मी अ थम्स अप, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बात समझ में आई? अब क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी. एंड ऑल द प्रोसेसेस इन विच एंट्रोपी इंक्रीजेस, वो प्रोसेसेस फेवर किए जाते हैं, वो नेचर में फेवर किए जाते हैं. क्यों सर, क्यों कह रहे हो ऐसा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो जितना ही ज्यादा डेल्टा एस की वैल्यू होगी, more is the delta S value, more negative would be delta G, and therefore more spontaneous will be the process. उतना spontaneous process होगा. That is why I am saying कि more is the delta S value, जितना ज़्यादा delta S होगा, because negative sign है ना यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा delta G negative होगा, spontaneous reaction होगा. That is why it is आंसर क्या हो गया, entropic gain of water molecules. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्वेश्चंस भाई आपके आए हुए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. या तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये तो मैंने करा दिया. अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम इज 0.5, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. If the number of moles of an atom is 0.5,
फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.5, एटम्स का नंबर पूछ रहा है तो मोल्स 0.5 है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे Na इंटू 0.5 कर दीजिए, Na इंटू 0.5 इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3.0 इंटू 10⁻23 वुड बी माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द नंबर ऑफ बेसेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये तो सीधा सा था, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ बेसेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज दिस मच, बेसेस की संख्या दी हुई, दे हैव गिवन यू द नंबर ऑफ बेसेस। अब दे आर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के कितने मोल्स हो जाएंगे, बेसेस के नहीं पूछ रहा है। They are asking you about the number of moles of the DNA molecule. Now the DNA molecule was only one. So what should be the answer? 1 by Na should be the number of moles. 1 by Na number of moles हो जाएगा. Because they did not ask the number of moles of the bases. ये तो पूछा ही नहीं था. दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एसटीपी पे 11.2 लीटर्स दिया हुआ है, जस्ट डिवाइडेड बाय 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा 1/2 इज द नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार 1/2 आ गया, यानी कि 0.4 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एटम्स कितने होंगे पूछ रहा है, दे आर नॉट आस्किंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ एटम्स। अब एक एटम में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी atoms are present in one molecule? So H2, this is one molecule. The number of moles are 0.5. So there are two atoms, molecules. So कितने atoms हो जाएंगे इतने moles में? तो 2 into 0.5, this will be 1 mole of atoms. एक mole atom का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, लीटर नहीं दिया हुआ है। डोंट कंफ्यूज इट विद द क्वेश्चंस दैट जहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम होगा तो लीटर में होगा। तो दिस इज 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 8 बाय ऑक्सीजन गैस बोला, O2 गैस, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 32, 8 बाय 32 कर दीजिए, 1/4। हाउ मेनी मोल्स, 0.25 मोल्स हुआ। बट वॉल्यूम पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम, इतना मोल्स अगर है तो वी कैन यूज दिस 0.5 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। सॉल्व करिए, 5.6 लीटर आ जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी। यहाँ पे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो it is given 1 decimeter cube, so you can just directly write liter over here, and always remember 1000 decimeter cube 1000 liter, तो 5.6 decimeter cube 5.6 liters। तो दिया हुआ है ओजोन गैस का 5.6 लीटर वॉल्यूम है, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो 5.6 अपॉन 22.4 आ गया 1/4 आंसर, 0.25 मोल्स। क्लियर। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज के ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है। सबसे हाई एनर्जी जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, देन आयोनिक, देन मेटालिक, देन हाइड्रोफोबिक, देन हाइड्रोजन, देन डाइपोल डाइपोल, एंड देन इंड्यूस्ड डाइपोल और वैंडर वॉल इंटरैक्शन। Dipole dipole is also a type of van der Waal interaction, but this is called as Debye interaction. मोस्टली आपके क्वेश्चंस यहीं तक बन जाएंगे, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज वैन डर वाल इंटरैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड अगर किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल रखें तो दिस इज द रफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। कोवेलेंट की 400, आयनिक की 200, मेटालिक की 200, हाइड्रोफोबिक की 100, हाइड्रोजन बॉन्ड की 50, डाइपोल डाइपोल की 25, इंड्यूस डाइपोल की 2.5। दिस इज ताकि आपको याद रह सके आसानी से, फॉर योर रिमेंबरिंग पर्पसेस। अगर आप इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो दिस इज किलो जूल पर मोल एंड दिस इज किलो कैलोरी पर मोल।
अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। तो आप इस वैल्यू को 4.2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कैलोरी आ जाएगा। तो दिस इज रफली 80, 40, 40, 20, 10, 5, 0.5। हाउ कैन यू रिमेंबर? इसका आधा ये है, ये और ये सेम है, आयनिक एंड मेटालिक आर ऑलमोस्ट सेम। फिर मेटालिक का आधा हाइड्रोफोबिक, फिर इसका आधा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इसका आधा डाइपोल डाइपोल, और फिर इसका आधा इंड्यूस डाइपोल। आधा नहीं है, 1/10, 2.5। उसी तरीके से ये हुई। बट जनरली क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज। तो हमेशा याद रखिए कोवेलेंट सबसे ज़्यादा। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? को कोवेलेंट, इंड्यूस्ड, कोविन, में, हर, हर, महादेव, इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं। कोवेलेंट, आयोनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। कोविन, अब जैसे कोरोना के समय में सब लोग भगवान के ही भरोसे थे, राइट? तो कोविन, में, हर, हर, महादेव करके याद कर सकते हैं, इसको याद हो जाएगा लंबे समय तक। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर। यहां तक समझ में आ गया सबको? याद करना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ दिस इज आस्क्ड। सीक्वेंस ही पूछा गया है, वैल्यू तो कभी पूछी नहीं गई है अभी तक, बट हाँ, अगर आप सीक्वेंस याद कर लेंगे तो दैट इज इनफ। इतनी बात याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा गया, ये क्वेश्चन गेट में भी आया है, गैट बी में भी आया है, जैम में भी आया है। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। फिर इसके बाद आयनिक, कोव इन में यहाँ पे आपका मेटालिक हो जाता है, फिर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आपका आ जाता है आयनिक, हाइड्रोजन और वैंडरवॉल। वैंडरवॉल इज हैविंग द लीस्ट एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ऊपर, फिर आयनिक, फिर कोवेलेंट। ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं पोलैरिटी को। तो आई सेड कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो करवा दूंगा मैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन कि पोलैरिटी के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है कि हाउ मच इट इज पोलर या कितना नॉन पोलर है, कि क्या सीक्वेंस होगा। सपोज दे आर गिविंग यू H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, NH3 एंड ऑक्सीजन। अब दे आर आस्किंग यू कि पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, या सीक्वेंस बता दीजिए पोलैरिटी का। अब एक बात तो तय हो गई, वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर पोलर और नॉन पोलर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर पोलर और नॉन पोलर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर पोलर और नॉन पोलर। N2 और O2 ये दोनों पोलर कहलाएंगे कि नॉन पोलर कहलाएंगे? क्या कहोगे आप इनको? इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? यस, वेरी गुड, इट इज नॉन पोलर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑक्सीजन में भी पोलैरिटी नहीं नजर आ रही, नाइट्रोजन में भी देयर इज नो पोलैरिटी, तो आप क्या कह सकते हैं? दे आर नॉन पोलर। इनकी तो कोई पोलैरिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए NH3 है एंड H2S है। NH3 अगर आप देखें, इट इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। विच वन विल बी मोस्ट पोलर? सबसे ज्यादा पोलर क्या होगा? ये होगा NH3। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली H2S होगा। फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके बाद। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, बिकॉज देर आर ओनली 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट ओवर हियर। नाइट्रोजन में क्या है? देर आर 3 बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ विच पोलैरिटी फर्दर डिक्रीजेस। ऑक्सीजन में पोलैरिटी इज प्रेजेंट स्लाइटली, 2 डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में देर आर 3 डबल बॉन्ड्स, पोलैरिटी फर्दर डिक्रीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो ये CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा, कार्बन 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बहुत कम कह सकते हैं कि पोलैरिटी होती है, बट स्टिल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो व्हाट शुड बी द आंसर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलर NH3 है, देन H2S है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, देन आपका ऑक्सीजन है, देन कार्बन आपका नाइट्रोजन है। दिस इज द आंसर। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन विच सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी, या पोलैरिटी ही नहीं, दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो विच वन विल बी मोर सॉल्युबल? ऑब्वियसली अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल होगा, फिर H2S गैस होगा, और फिर बाकी इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। गुड। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे मोलैरिटी मोलैलिटी के ऊपर देख लेते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट। आपको मैं एक क्वेश्चन करा भी रहा था, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या कह रहे हो सर? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर नंबर ऑफ मोल्स को और थोड़ा सा इलेबोरेट करें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक। अगर मान लो द सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, तो क्या करें? यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ml है, अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतने इतने फॉर्मूला है मोलैरिटी का। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया था। कैसे सर किया था? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहाँ पे मिलीलीटर में दिया था तो आई हैड टू मल्टीप्लाई बाय 1000। मोल्स आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे 5.85 अपॉन 58.0.1 मोल्स। तो 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया था 500, तो 500 इंटू 1000 किया, 0.2 आ गया था। दिस इज द आंसर। ये हो गया मेरा मोलैरिटी। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी कैसे निकालना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कई बार समझ में नहीं आता है, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब व्हाट वी आर मिक्सिंग इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? लेट अस से वाटर, एसीटोन, किसी भी चीज में डिसॉल्व कर रहे हो। सॉल्यूट क्या हो सकता है? शुगर, सॉल्ट, ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट वाटर, एसीटोन, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला करके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक, ये पूरी कहानी हो। अब मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी तो मैक्सिमम टाइम्स 99% टाइम्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन मोलैरिटी। लेकिन अगर कोई पूछे मोलैलिटी क्या होता है, अच्छा, मोलैरिटी इट इज गिवन बाय कैपिटल M। जो सिंबल आपको यूज करना है दैट इज M। मोलैलिटी के लिए द सिंबल दैट इज यूज्ड इज स्मॉल m। यहाँ पे एक खतरनाक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये बहुत परेशान करता है लोगों को। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी तक तो हम वॉल्यूम ले रहे थे सॉल्यूशन का, दिस इज अ डिफरेंस। in case of in case of molarity we were talking about volume of solution in liters, but over here in case of molality we are talking about weight of solvent in kilogram। सर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऐसे क्वेश्चंस में इन विच दे आर आस्किंग अबाउट मोलैलिटी दे वुड बी गिविंग यू डेंसिटी, और वॉल्यूम दे देंगे आपको, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बिकम योर मास या फिर वेट। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक खास बात याद रखनी है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर तो आपको वो डेंसिटी नहीं देंगे, बिकॉज इट इज नोन, ये आपको पता होना चाहिए। 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये याद रख लीजिए। इट विल नॉट बी गिवन इन द एग्जामिनेशन बिकॉज दिस इज वेल नोन वैल्यू। 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी लिख दिए हैं, मे बी आपको परेशान करने के लिए, अगर आपको कुछ और वैल्यूज दी जाए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.001 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया मोलैलिटी। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से देखिए मेरे साथ और मुझे बताइए व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस। ये है,
जल्दी से देखिए एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके मनस्वी, मैं बता देता हूँ आपको भी। पहले ये क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए। यस, करेक्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी डिफर्स फ्रॉम मोलैरिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है? मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। हमसे पूछा गया कि सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, ये कैसे बताया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे पोलैरिटी की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी, उतना ही शेयरिंग और प्रोफाउंड होता हुआ चला जाएगा। So since the number of bonds between nitrogen atoms is 3 and number of bonds between oxygen atoms is 2, although both are non-polar, but still अगर कहा जाए तो nitrogen is more, और it is, अगर ऐसे कहें तो it is less polar than oxygen। ऑक्सीजन को थोड़ा और पोलर आप कह सकते हैं बिकॉज देर आर डबल बॉन्ड्स, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। मनस्वी, आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात की, नेक्स्ट करें इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, अच्छा नॉर्मेलिटी अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेट मी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी। ओके, नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए, बिफोर वी बिगिन नॉर्मेलिटी, उसको पढ़ने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स को पढ़ना जरूरी है। ग्राम इक्विवेलेंट्स को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, वेलेंसी और चार्ज। तो अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो आपको बस क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी, वेलेंसी और चार्ज। अब सर व्हाट इज एसिडिटी या व्हाट इज बेसिसिटी या व्हाट इज वेलेंसी या व्हाट इज चार्ज, इसके बारे में पूछा जाए। एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है। दैट मीन्स अगर कोई पूछे सर HCl का क्या होगा, और अगर कोई पूछे बेस का क्या होगा, एसिडिटी। NaOH का क्या होगा, एसिडिटी। HCl का बेसिसिटी। जो भी, बिकॉज एसिड कैन डोनेट H+ आयंस, बेस कैन एक्सेप्ट H+ आयंस। तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, 1। H2SO4 की बेसिसिटी 2। NaOH की एसिडिटी 1। तो हमेशा दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी, एंड बेस का क्या होता है, एसिडिटी। तो चाहे आप एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट को, चाहे बेसिसिटी से, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, या वैलेंसी से कर दीजिए या चार्ज से कर दीजिए, यू वुड गेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बहुत डीप में नहीं जाना है इसके बारे में, क्योंकि नॉर्मेलिटी के ऊपर जनरली क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। एक क्वेश्चन देखा जाता है, वो मैं दिखा दूंगा अभी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना दिखाया आपको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लगा दीजिए। तो अगर कोई पूछे, जहां से क्वेश्चन आता है अबाउट नॉर्मेलिटी, वो क्या है, इफ द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज दिस मच, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब यहाँ तो मैंने डेरिवेशन दिखाया हुआ है कि हाउ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कैन बी कनेक्टेड, बट यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, just have to remember this formula: normality is equals to molarity into acidity, basicity, charge या फिर valency। you can multiply molarity with this to get normality। तो क्वेश्चन में क्या था, 0.5 नॉर्मल H2SO4 था। तो कौन मुझे बताएगा गाइस, H2SO4 की एसिडिटी होती है कि बेसिसिटी होती है? H2SO4 will have acidity or basicity? H2SO4 will have, H2SO4 बेटा अंश बेसिसिटी होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया आपसे कि H2SO4 एसिड है, एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है और बेस की हमेशा एसिडिटी होती है। एसिड H2SO4 और HCl
इसकी हमेशा बेसिसिटी होगी। एंड कितना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल HCl है, इट विल बी डोनेटिंग 1 H प्लस आयन, तो बेसिसिटी कितनी हुई 1। H2SO4 कितना हुआ, इट विल बी डोनेटिंग 2 H प्लस आयन, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। NaOH क्या होगा, NaOH बेस, इट विल बी हैविंग एसिडिटी, हाउ मच एसिडिटी विल बी देयर, OH आयंस को डोनेट करेगा, इट विल बी हैविंग 1 एसिडिटी। होपफुली समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हुआ हो नाउ। तो यहाँ पे 0.5 नॉर्मल H2SO4 दिया था, तो व्हाट इज द H2SO4 बेसिसिटी 2, और हमने अभी भी बताया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कनेक्टिंग नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एसिड बेस चार्ज वॉल्यूम वैलेंसी सॉरी। तो 0.5 नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, 0.5 इज n, तो बेसिसिटी वी नो दैट इट इज 2, तो आप 0.5 अपॉन 2 करेंगे 0.25 आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, एग्जैक्टली सेम नहीं आया, बट दे हैव आस्क्ड नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को कनेक्ट करने वाला। गिव मी अ थम्स अप, क्लियर है? तो भाई बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। गेट का सदमा अगर आपको लगा है तो आप निश्चित जान लीजिए, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो गैट भी आप फोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको पक्के विश्वास के साथ, अगर आपने गेट की पढ़ाई अच्छे से की है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉल कर पा रहे, रिवाइज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो आप गैट भी फोड़ सकते हैं बिल्कुल, मतलब टॉप रैंकर बन सकते हैं। गेट जैसा पंगा यहाँ पे है ही नहीं, ना MSQ का पंगा, ना NAT का पंगा। बस कुछ बातें पार्ट ए की याद रखनी है, जो बोल रहा हूँ पार्ट बी में उतना पढ़ लीजिए, काम बन जाए। अभी तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आज मैं पार्ट ए के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम कोर्स ओरिएंटेशन में चला गया है। हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट ए के बारे में, अभी मुझे पार्ट बी थोड़ा सा बातचीत और कर सकता हूँ। अगर मुझे 0.9 मोलार AlCl3 दिया है तो क्या आप मुझे नॉर्मेलिटी बता सकते हैं इसकी? यहाँ पे आप नॉर्मेलिटी निकालते समय यू विल हैव टू यूज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम Al+3। तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। AlCl3 में Al3+ होता है, जो हाईएस्ट वैलेंसी यूज करनी है हमें, क्लोरीन की -1 होगी, Al+3 Cl-1, तो ऑब्वियसली Cl के 3 एटम्स हैं, बट हमको ये नहीं कंसिडर करना, ये कंसिडर Al+3। तो मोलैरिटी इज गिवन एज 0.9, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो 0.9 अपॉन सॉरी 0.9 इंटू 3 कर देंगे तो 2.7 आ जाएगा। दिस इज द केस, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इट इज मोल फ्रैक्शन, इन विच वी हैव टू कंसिडर कि मान लीजिए एक बीकर है, इन दिस बीकर देयर इज एलिमेंट ए और मॉलिक्यूल ए ऑल्सो, बी ऑल्सो, सी ऑल्सो, ये तीनों पड़े हुए इसके अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज Nc। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो कैसे करेंगे? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc कर, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर कोई पूछे सर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। पार्ट ए में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसको पार्ट ए के लिए कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पार्ट बी पढ़ाना होता तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा होता। दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर पार्ट ए। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से क्वेश्चन पार्ट ए में बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, तो दैट इज वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे था, हाँ भैया ये बताइए चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हाँ मनस्वी, आप देख सकती हैं, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको अलग से फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ये क्वेश्चन कराया है, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है हमने, आंसर बताइए इसका। गुड, बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये गैट बी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पेपर है। चलिए अभी पीएच नहीं किया हुआ है तो पीएच को भी देख करके फिर इसके ऊपर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। पीएच के ऊपर बात करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा और 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सर व्हाट इज पीएच? पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन।
अगर मैं ये एक बेस लाइन बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, जो 7 इसकी मिड पॉइंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 is present, this is considered as acidic pH, और right hand side में it is considered as basic pH. So what do you mean by acidic and what do you mean by basic? When the concentration of H plus ions is more than OH minus ions, then the solution is considered as acidic. जब H plus आयन की संख्या OH माइनस से ज़्यादा हो जाएगी तब आप कहेंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन है। वहीं अगर आप कह रहे हो कि OH माइनस आयन की संख्या H प्लस से ज़्यादा है, OH minus ions are more than H plus, the solution is considered as basic. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। Amongst pH 5 and 8, in which one OH minus ions will be more? अगर मैंने आपसे कहा pH 5 है और pH 8 है, in which of them will the OH minus ions be more? OH minus ions किस में ज़्यादा हों, pH 5 में कि pH 8? Obviously pH 8 is basic, तो obviously OH minus ions will be more than H plus ions over here. ये भी क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला या 4 फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए, इन चारों पे क्वेश्चन आते हैं बस। सबसे पहला क्वेश्चन, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग। जो भी लोग मैथ से डरते हैं, इसमें कुछ भी मैथ्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। इफ pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। अगर कोई कहे कि pH निकाल दो भाई, तो आप कहेंगे मुझे H प्लस आयंस बता दो, टेल मी द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, टेल मी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड आई विल टेल यू द pH। कैसे सर? P का मतलब क्या होता है? P सिंपली मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ। अब क्योंकि P के आगे ओवर हेयर H इज रिटन, तो देयरफॉर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। अगर मैं यही POH लिख दूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूँ P विष्णु, नेगेटिव लॉग ऑफ विष्णु, P अंकित, नेगेटिव लॉग ऑफ अंकित, ऐसे होगा, ऐसे याद हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ, आगे जो भी लिख दीजिए, H, OH, अंकित, कुमार या कुछ भी लिख दीजिए। उसी तरीके से POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। pH और POH को जब भी आप जोड़ोगे, व्हेन यू आर एडिंग pH प्लस POH, इट विल कम आउट टू बी 14। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का pH आपने कैलकुलेट किया एंड POH कैलकुलेट किया, आपने कहा कि pH जो है वो 6 आ रहा है, तो POH 14 माइनस 6 कर दीजिए तो POH आ जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली pH निकाल लीजिए या POH निकाल लीजिए, 14 माइनस लीजिए, यू विल बी गेटिंग द अदर वैल्यू। आयनिक प्रोडक्ट, अगर H और OH माइनस निकालना पड़े तो क्या करेंगे? H प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 होता है, इट इज 10 टू द पावर माइनस 14। तो अगर एक भी इसमें से पता है, वी नो वन, वी कैन कैलकुलेट द अदर वन, दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने से फॉर्मूले हैं, इसी में pH से मट जाएगा। जैसे कि कैलकुलेट H प्लस आयंस इफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 2। अगर pH 2 दिया हुआ है, pH अगर 2 दिया हुआ है, तो आप हमें H प्लस आयंस को कैलकुलेट करके बता दीजिए। सिंपल सी बात है, pH 2 कब आएगा? जब 10 टू दी पावर माइनस 2 H प्लस आयंस कंसेंट्रेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जब H प्लस निकालना हो तो 10 टू दी पावर माइनस PH कर दीजिए, OH निकालना, OH माइनस निकाल, 10 टू दी पावर माइनस POH कर दीजिए। तो अगर हमसे कहा गया है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, तो कैलकुलेट H प्लस आयंस, तो 10 टू दी पावर माइनस 2। भाई तभी तो हम कह रहे हैं ना कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो अगर आप pH नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 करोगे, ये 10 टू द पावर माइनस 2 इधर आ जाएगा, इट विल बिकम +2, और लॉग 10 क्या हो जाता है? 1 हो गया, 1। तो pH कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से pH इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हमें pH दिया हुआ है, वी वांट टू फाइंड आउट H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस pH। अगर हमें OH माइनस आयन निकालना है और
पीओएच दिया हुआ है 10 to the power माइनस पीओएच कर दीजिए, दिस विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लॉग कंडीशंस थोड़ी बहुत देख लीजिए। लॉग 10 बेस 10 1 होता है। लॉग 10 to the power 5 5 विल कम ओवर हेयर, तो 5 लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा, दिस विल बी 5। लॉग 10 to the power -2, अगेन जो भी पावर में है, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द पावर अलॉन्ग विद इट्स साइन वो इधर आ जाएगा -2। लॉग 5 प्लस लॉग 2 करेंगे तो लॉग 5 इंटू 2 कर सकते हैं, बीच में अगर प्लस साइन है तो यू कैन मल्टीप्लाई द टू थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ahead of log 10। log 3 minus log 2 करेंगे तो log 3 by 2 है। These are some of the properties of log, hopefully समझ में आया होगा। यस, तो जल्दी से मुझे अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन बताएगा। इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज, बड़े प्रेम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। If pH of the solution is 3, hydrogen ion concentration is, दिशा बेटा एक बार फिर से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको अपनी जो गलती आपने की वो समझ में आएगी, कुछ गलती कर दी है। मैंने अभी भी बताया कि अगर हमें पीएच दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए 10 to the power माइनस पी एच लगाएंगे, तो 10 to the power -3 लिखना चाहिए था। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। समझ में आया बेटा, दिया आपको समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहीं पे आपसे कहूँ कि पी ओ एच जो है वो 5 दिया हुआ है, तो पी एच बता सकते हैं क्या, पी ओ एच, पी एच 5 दिया हुआ है, सॉरी पी ओ एच बता सकते हैं, पी एच 5 दिया है, पी ओ एच बता सकते हैं क्या। ऐसे ही सिंपल सिंपल टुच्चे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यस बता सकते हैं, 14 - ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10 to the power -7 दिया हुआ है, ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना होगा बता सकते हैं। एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10 to the power -7 है, ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना होगा। यस वेरी गुड, इट शुड बी 10 to the power -7, बिल्कुल सही कहा, 10 to the power -7। तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 to the power -14 होता है, तो अगर एक 10 to the power -7 हुआ तो ऑब्वियसली पी एच अगर हमें दिया हुआ है, सॉरी एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10 to the power -7 दिया हुआ है, तो ओ एच माइनस भी 10 to the power -7 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये देखिए ये कौन बताएगा गाइस, बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जूम कर देता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट पीएच, सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा। सारे के सारे गैडबी के क्वेश्चन है गाइस। चलिए देखिए,
अगर हम इसको कह रहे हैं कि 0.01 मोलार HCl, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये क्या हो गया? 10⁻⁻² मोलार HCl है। और अगर हम pH निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻²। तो pH कितना हो जाएगा भैया? pH हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो pH हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो pH हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो pH हो जाएगा 0। तो सबसे ज़्यादा pH किसका है गाइस? 3 जो है सबसे ज़्यादा pH है। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रियली हैप्पी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। देख रहे हो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मानते नहीं मानते? ऐसे ही रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज आपको जो पढ़ाऊंगा उसको सॉल्व करेंगे और तो आसानी से हो जाएगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट, थोड़ा सा रेगुलर रहना है और पढ़ना है। तो ये हो गया, ये भी देख लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिए। लिविस एसिड और लिविस बेस के ऊपर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट चीज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविस एसिड एंड बेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको मैं दिखा देता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। लिविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लिविस बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। इट विल बी डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुइस एसिड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुइस बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, द वन दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं लुइस बेस। वन दैट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज लुइस एसिड। तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। जैसे BF3 के बारे में बात करें, BF3, BF3 में empty orbitals होते हैं। बिकॉज ऑफ द empty orbitals it has having space to accept the electrons। अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बताया इट इज लुइस एसिड। BF3 क्या कहलाता है? इट इज लुइस एसिड। NH3 अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर रहता है। NH3 क्या है? ये डोनर की तरीके से काम करता है। इट कैन डो, लोन पेयर है तो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। इफ इट इज डोनेटिंग, लुइस बेस कहलाता है। तो BF3 इज द एक्सेप्टर एंड NH3 इज द डोनर। लिविस एसिड लुइस बेस कॉन्सेप्ट में तो आप देखें NH3 प्लस BF3, NH3 इज डोनेटिंग टूवर्ड्स BF3। तो ये लुइस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, चिंता मत करिए, इसमें बस इतना पूछा जाएगा। अगर गैट का क्वेश्चन होगा तो लुइस बेस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। इतनी बात बताऊं, जिसके पास लोन पेयर होगा डोनेट करेगा, जिसके पास एम्प्टी शेल्स होंगे एक्सेप्ट करेगा। कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अंडरस्टैंड दिस। प्रोटॉन्स, यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस इज सिंपल। अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, H+ आयन डोनेट किया जा रहा है, एसिड क्या करता है? H+ आयन डोनेट कर। दिस इज व्हाट वी स्टडी, जो हम एक्चुअली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एसिड किसको कहते हैं? H+ आयन डोनेट करने वाले। बेस किसको कहते हैं? H+ साइंस को एक्सेप्ट करने वाले। दिस इज द जनरल थिंग दैट वी स्टडी, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो अब समझिए, एसिड क्या है? जो H+ साइन को डोनेट कर, वन दैट इज डोनेटिंग H+ साइन। बेस क्या है? दैट वन दैट इज एक्सेप्टिंग H+ साइंस। तो अगर HCl के बारे में बात करेंगे तो HCl में H+ आयन, HCl breaks down into H+ and Cl-। HCl क्या है? इट इज एसिड। वाई? बिकॉज इट इज डोनेटिंग H+ आयन। अब H+ के अलावा द other thing that is formed apart from H+, it is Cl-। This is called as conjugate base of HCl acid. So if you subtract H+ ion from HCl, you would be getting conjugate base. So in other words, we can say acid minus H+ is equals to conjugate base. So this kind of question is asked, what is the conjugate base of HCl? What is the conjugate base of H2SO4? These kind of questions are asked. So acid minus H+ can give you conjugate base. So over here, conjugate base is Cl minus. Similarly, H2O, water. It is a base. Why? Because it can accept H+ ion and form hydronium ion. H3O plus बना सकता है। तो इट कैन एक्सेप्ट H+ आयंस। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। दैट मींस बेस प्लस H+ विल बी गिविंग यू कॉन्जुगेट एसिड।
एसिड माइनस H प्लस, अगर हम यहाँ पे लिख दे एसिड minus H plus, it will give you conjugate base, and base plus H plus, it will give you conjugate acid. ये कहानी तो this is with respect to the acceptance and donation of H plus ions. ये conjugate acid और base का concept हो गया. तो Lewis acid base, conjugate acid base, इन सब के बारे में हमने सीख लिया. Just let me just check कि हमने सारे questions कर लिए या नहीं. ये एक जल्दी से देख लीजिए ये क्वेश्चन. वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज मेनली ड्यू टू. वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होगी, जल्दी से सोच के बताइए. आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे. वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स क्यों पानी में सॉल्युबल होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स पानी में क्यों सॉल्युबल होते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड ही बने. इट्स नॉट एसेंशियल कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बने. इट्स नॉट एसेंशियल कि ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एफ ओ, भी दिखाता हूँ मैं आपको. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. बट क्या हमेशा इतना होता है, तो क्या हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. नो no. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये देखिए यहाँ पे मोस्टली एफ ओ एंड एन आर इन्वॉल्व बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. वाई, बिकॉज वी वांट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9. तो क्या हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप देखो. तो क्या हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, नो. तो यहाँ पे क्या है, आयन डाइपोल इंटरैक्शंस की वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली पोलैरिटी डेवलप होती है. there would be polarity that would be developed because of which the things that are ionic can get soluble in water. Hydrophobic interaction पानी में नहीं बन सकते. Hydrogen bonding only लिखा हुआ है. Hydrogen bonding of course it can be used for F, O and N. जिन एलिमेंट्स में F, O and N है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी फॉर्म्ड, बट हर जगह बनेगी नहीं. कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बन सकता. कोवेलेंट बॉन्ड तो पानी के अंदर नहीं बनाओगे आप. तो ऑब्वियसली आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. गिव मी अ थम्स अप गाइस. ये बात समझ में आई आप लोगों को. डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने आज खत्म कर लिया. अभी मैं आपको जस्ट एक बार फिर से बता दूं. आफ्टर दिस क्लास, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. आफ्टर दिस क्लास आई वुड बी मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप, जिसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक डाल दूंगा. सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. जस्ट आफ्टर द क्लास आई वुड बी गिविंग यू द पीडीएफ नोट्स. पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स व्हेन द रिकॉर्डिंग विल बी प्रोसेस्ड, उसका लिंक आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही. आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ. ऑल्सो यूट्यूब पे भी पहले 2 क्लासेस जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो. जो भी स्टूडेंट चाहता है उसको लिंक मिल जाए, मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा. आई विल बी शेयरिंग यू द टेलीग्राम ग्रुप ओवर देयर, या व्हाट्सएप का नंबर भी है. ऑब्वियसली यहाँ पे आप मुझे, दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम आउटसाइड, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. 8299134528, ये मेरा नंबर है. इस पे आप मैसेज कर देंगे तो हम आपको जो लिंक है वो भेज देंगे, या आपको अगर ज्वाइन करना हो कोर्स को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा 8299134528. ठीक है. तो अभी 2 क्लासेस के लिए यू वुड बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो जिसके थ्रू आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप से भी कोर्स को. उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. जस्ट वांटेड अ फीडबैक. डिड यू लाइक द क्लास एंड डिड यू लाइक द पेस दैट आई एम गोइंग एट. इस पेस पे मैं चल रहा हूँ, क्या सभी लोगों को सही लग रहा है, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है. गुड.
आफ्टर दिस क्लास आई वुड ऑल्सो बी शेयरिंग विद यू अ डीपीपी, एक डीपीपी भी शेयर करूंगा जो आज से रिलेटेड होगा। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, मैं उसके कल आंसर्स आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।